اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بلند تر صلوات اللهم صل علی محمد وعلی محمد. دعا ہے کہ مالک کونین بطفیل شہزادی کونین آج کی اس صف ازا، آج کی اس مجلس ازا کو بارگاہ معصومین میں اور بارگاہ صاحب العصر والزمان اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ میں ذاکرین کا پڑھنا، مجھ حقیر کی حاضری اور بالخصوص و بالعکس ہمارے برادر ذی وقار عزت مآب علی جناب سید انتصار شاہ صاحب کی یہ محنت، یہ کاوش، آپ دوست احباب کی شرکت اور پوری دنیا سے ناظرین کا اس مجلس کو دیکھنا میرے مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سوائے غم مظلوم کربلا کے دنیا کا کوئی غم نہ دکھائیں، اور بہت بڑی دعا آمین کہیے گا کہ ایام ازا قریب آ رہے ہیں۔ میرا مالک ملت جعفریہ کو ہر طرح کی سازش، ہر طرح کے خوف اور خطرے سے محفوظ و مامون فرمائے۔ سرکار ولی العصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج کی یہ مجلس مخصوص و منسوب ہے میرے اس امام برحق کے ساتھ، میرے اس مولا و آقا کے ساتھ کہ میری جان قربان، ہماری لاکھوں جانیں قربان اپنے اس امام پہ کہ جو ایک ہی وقت میں محمد بھی ہیں اور علی بھی ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ کی سماعتوں کو میں بڑا ہی کمال ایک ادب کا جملہ ہدیہ کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ کیا کہنے جناب سیدہ تیرے بیٹوں کے جو آل محمد ہو کے پھر محمد ہو جاتے ہیں۔ کیا بات، کیا کہنے، کیا کہنے شہزادی کونین تیری پاک آل کے، تیری پاک اولاد کے، یہ آل محمد ہو کے پھر محمد ہو جاتے ہیں۔ ان میں محمد ہیں، ان میں علی ہیں، اور بہت مشہور و معروف حدیث جو ہر شیعہ گھر کے بچے بچے کو یاد ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد۔ جس امام کا آج ہم دن منا رہے ہیں یہ اوسط محمد ہے، کیونکہ پہلے محمد ختمی مرتبت سرکار حضرت پیغمبر اسلام، اور ان کے بعد اگر کوئی محمد ہے تو وہ سرکار حضرت باقر العلوم۔ میں نے جب بھی آپ کے ہاں اس مجلس کو پڑھا تو میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، کیونکہ اکثر آپ کی مجالس معصومین کے نام کے ساتھ منسوب ہوتی ہیں، تو میں اکثر یہ معصوم کے ظہور کے موقع پر یہ لفظ کہا کرتا ہوں کہ ان کے ہاں جو نام رکھے جاتے ہیں وہ قابلیت کی بنیاد پہ نہیں رکھے جاتے بلکہ خدا کی صفات کی بنیاد پہ رکھے جاتے ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ورنہ ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ سارے کے سارے محمد، ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ سارے کے سارے علی ہیں، لیکن جو ان کے لقب ہیں، اگر کوئی مصطفیٰ ہے، اگر کوئی مرتضیٰ ہے، کوئی مجتبیٰ ہے، کوئی حسین شہید کربلا ہے، کوئی زین العابدین ہے، کوئی باقر العلوم ہے، کوئی صادق العطرت ہے،
कोई काजिम, कोई रजा, कोई तकी, कोई नकी और कोई अस्करी और कोई कायम है, तो इन अलकाबात का मकसद भी सिर्फ ये है कि इनके अलकाबात में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई खुदा की सिफ्त पोशीदा है। क्योंकि ये वो हस्तियां हैं जो कायनात में रूए जमीन पे अल्लाह के नुमाइंदे तो बन के आए ही आए, लेकिन इनमें तौहीद का अक्स नुमाया है, इनमें अल्लाह का अक्स नुमाया है। अगर कोई देखना चाहे कि अल्लाह की हम्द कैसी होती है तो उसे मोहम्मद देखना पड़ेगा। अगर कोई देखना चाहे अल्लाह की अजमत कैसी होती है तो उसे अली देखना पड़ेगा। अगर कोई अल्लाह का हुस्न देखना चाहे तो उसे हसन देखना पड़ेगा। कोई खुदा की करीमी का अंदाजा लगाना चाहे तो उसे हुसैन देखना पड़ेगा। कोई सजदे का म्यार देखना चाहे तो उसे सैयदुल साजिदीन की दहलीज पे जाना पड़ेगा। कोई अल्लाह के अलूम का हाथा करना चाहे तो सरकार बाकर की दहलीज पे खैरात मांगनी पड़ेगी। कोई चाहे कि अल्लाह की सदाकत का मजहर कैसा है तो इमाम जाफर सादिक को मानना पड़ेगा। अगर कोई देखना चाहे कि वो अल्लाह राजी कैसे होता है तो फिर काज़िम और रजा को देखना पड़ेगा। तकावत और नकावत के लिए तकी और नकी को देखना पड़ेगा। हैबत के लिए अस्करी को देखना पड़ेगा और तौहीद की गैबत के लिए सरकार कायम को देखना पड़ेगा। क्या बात, ये मेरे वो इमाम बरहक हैं जिनमें खुदा का अक्स नुमाया है। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू होगी अगर आपकी समाअतें बिल्कुल तवज्जोहात जो है वो मजलिस की जानिब मबसूर रही कि ये मेरे वो इमाम हैं जिनके बारे में मैंने इब्तदाई गुफ्तगू में कहा कि ये मोहम्मद भी हैं और अली भी हैं। कितना खूबसूरत इम्तजाज है मेरे इस इमाम पे कि इनके यहाँ ये अल्लाह के मजहर भी हैं और मुस्तफा जैसी शक्ल भी है। कितना मुश्किल होता है एक ही वक्त में अल्लाह और मुस्तफा का मजहर होना। क्या बात है। नामे नामी इसमें गरामी मोहम्मद, लकब किया है मेरे मौला का बाकिर, क्योंकि आप गिने चुने और मुनफरद अहबाब तशरीफ फरमा होते हैं और ये मजलिस मुनफरद मौजू का मुतालबा करती हैं। तो हम जब जनाब सरकार बाकिर क्या किताबों से पढ़ते हैं कि जनाब बाकिर ये जो लकब है इसका मतलब क्या है, तो कहते हैं कि बाकिर कहते हैं खोल देने वाला। जिसने अलूम इलाहिया को खोला उसे बाकिर कहते हैं। लिहाजा आइए मासूम की बारगाह से तवस्सुल करते हैं तो और पूछते हैं कि बाकिर का मतलब क्या है। अब मासूम से पूछा गया कि मौला, सरकार सादिकुल इतरत से पूछा गया कि मौला आप बताइए कि आपके बाबा का जो लकब बाकिर है इसकी वजह क्या है। जो अभी इमाम ने मखसूस अहबाब के सामने बैठ के लफ्ज़ बाकिर की वजाहत की, मैं आप अहबाब को हदिया करने लगा हूं। मौला ने फरमाया बाकिर की जो बा है ये बाए बिस्मिल्लाह है। क्या बात है। जो पहले बा आती है ये बाए बिस्मिल्लाह है और बाए बिस्मिल्लाह के बारे में शियों से ज्यादा तो कोई भी नहीं जानता कि बाए बिस्मिल्लाह जो है उसकी खासियत क्या है, जिसके बारे में अब्दुल्ला इब्न अब्बास जैसी शोहरा अफाक मुफस्सर कुरान शख्सियत अमीर अल मोमिनीन के कदमों में बैठ के कह रहे हैं, या अली मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुरान की तफसीर समझाइए। अमीर अल मोमिनीन अब्दुल्ला इब्न अब्बास को रोजाना कुरान की तफसीर बताते हैं। एक आयत की तफसीर में पूरी रात गुजर जाती है, एक आयत की तफसीर में पूरा दिन गुजर जाता है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहता है मौला क्या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मुझे पूरे का पूरा कुरान एक ही दफा समझा दें। इतना कहना था या अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि ये वसफ भी अल्लाह ने अबू तालिब के बेटे अली को दिया है कि मैं समुद्र को कतरे में समो सकता हूँ। तो अगर तू चाहता है कि मैं तुझे पूरा कुरान समझा दूं तो फिर जान लीजिए अब्दुल्ला इब्न अब्बास कि जो कुछ खुदा ने पूरे कुरान में रखा है खुदा ने उसका मुकम्मल अर्क सूरह यासीन में रख दिया है, और जो कुछ सूरह यासीन में रखा है वो पूरे का पूरा सूरह हमद में रख दिया है, और जो कुछ हमद में रखा है वो हमद की बिस्मिल्लाह में रख दिया है, और जो बिस्मिल्लाह में रखा है वो बिस्मिल्लाह की बा में रख दिया है, और जो कुछ बा में है वो बा के नुक्ता में रख दिया है। और अना नुक्ता तो तहतुल बा, वो बा का नुक्ता मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ, वो बा का नुक्ता मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ। ये
بہت مشہور حدیث ہے جو شیعہ گھر کے بچے کو یاد ہے. یہاں میں لفظ کہنا چاہوں گا، کیا کہنے امیر المومنین تیری ذات کے، سمٹنے میں آئے تو نقطہ بن جاتے ہیں، بکھرنے میں آئے تو مکمل قرآن بن جاتے ہیں. لہذا مولا امیر المومنین نے با کا نقطہ کیوں کہا؟ کیونکہ نقطہ ہٹا لیا جائے تو با پڑھی نہیں جاتی، علی ہٹا لیا جائے تو قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو اب سرکار صادق العطرت نے فرمایا یہ جو باکر کی با ہے یہ با بسم اللہ ہے. باکر با، آگے الف. سماعتوں کو مکمل مجلس کی جانب مبذول کیجئے گا. فرمایا الف جو ہے یہ الوہیت کا ہے. جیسے اللہ کی الوہیت میں الف آتا ہے، ایسے ہی سرکار باکر کے لقب میں الف آتا ہے. بے بسم اللہ کے لیے، الف الوہیت کے لیے. مولا یہ کاف جو ہے، یہ دو آنکھوں والی کاف کس کے لیے ہے؟ فرمایا یہ قدرت کے لیے. مولا یہ رے کس کے لیے؟ فرمایا رحمانیت کی. سرکار باکر کے لقب میں با بسم اللہ کی ہے، الف الوہیت کی ہے، کاف قدرت کی ہے، رے رحمانیت کی ہے. یعنی کہ مجسم توحید کے مظہر کا نام باکر ہے. نام نامی اسم گرامی میرے مولا کا محمد اور لقب میرے مولا کا باکر. کیونکہ ہمیشہ جب بھی کسی امام پہ گفتگو ہوتی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ بہت سی جہتیں، بہت سے زاویے ایسے استعمال کیے جائیں جو اس سے پہلے کبھی استعمال نہ کیے گئے. سرکار باکر کے لیے دیکھیں، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 12 آئمہ ہیں تو 12 آئمہ میں سے، اور یہ 4 معصومین میں سے، اگر 12 آئمہ میں سے دیکھے جائے تو یہ پہلے محمد ہے. کیونکہ پہلے امام علی ہیں، دوسرے امام حسن مجتبی، تیسرے امام حسین، پھر چوتھے امام علی زین العابدین اور 5ویں محمد. یعنی کہ 12 اماموں میں سے پہلے محمد اور 14 معصوموں میں سے دوسرے محمد. کیا بات؟ آئمہ میں سے پہلے محمد، معصومین میں سے دوسرے محمد. اور یہ وہ دوسرے محمد ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری، حدیث قصہ کا راوی، آل محمد کے رازوں کا امین، کتنا بہترین صحابی تھا جسے خود شہزادی نے حدیث قصہ سنائی. لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ صحاب کا تذکرہ نہیں کرتے. میری جان قربان رسول کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری پہ. اتنا اچھا صحابی کہ خود شہزادی نے حدیث قصہ سنائی. قبر حسین کا پہلا مجاور اور پہلا زائر جناب جابر بن عبداللہ انصاری اپنی جوانی، اپنے شباب کے عالم میں سرکار مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. کائنات کے نبی منبر پہ جلوہ فکر ہیں. سرکار جابر جب جاتے ہیں تو سامنے صحابہ درود کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور صحابہ کے درمیان میں آمنہ کا چاند ایسے بیٹھا ہوا ہے جیسے ستاروں کے اندر کوئی چاند گھرا ہوا ہو. مسجد نبوی کی یہ حالت ہے کہ حسنین کے نانا منبر پہ جلوہ فکر ہیں. جناب جابر صحابہ کے درمیان سے گزرتے ہوئے رسالت مآب کے چہرے کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے مصر کے بازار میں ضعیفہ نے یوسف کا چہرہ دیکھا تھا. جناب جابر منبر کے بالکل قریب آ کے رسالت مآب کے چہرہ مبارک کی زیارت کر رہے تھے. چہرہ مبارک کی زیارت ایسے اشتیاق کے ساتھ کر رہے تھے کہ کبھی جابر کے چہروں پہ مسکراہٹ آتی، کبھی جابر کی آنکھوں میں محبت مصطفیٰ کی چمک نظر آتی. سرکار رسالت مآب نے یوں جابر کو اپنی طرف بےتاب نظروں سے دیکھتے ہوئے دیکھا. رسالت مآب نے خطبے کو روکا، فرمایا قم یا جابر، اے جابر ذرا کھڑے ہو جائیے. جابر بن عبداللہ انصاری کھڑے ہوئے. رسالت مآب نے فرمایا علی یا میرے قریب آئیے. جابر بن عبداللہ انصاری قریب آئے. رسالت مآب نے جابر بن عبداللہ انصاری کا سر اپنے زانوں پہ رکھا. جابر روایت کرتے ہیں جو ہی میرا سر زانوں رسالت پہ گیا تو میں نے خوشبو رسالت کو محسوس کیا. ایسی خوشبو میں نے کائنات میں پہلے کبھی نہ دیکھی تھی. میرا جی چاہتا تھا کہ میرے بدن سے جان نکل جائے اور میرا دم یہیں پہ ختم ہو جائے. رسالت مآب نے اپنا دست شفقت، وہ ہاتھ جس کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی تھی، وہ ہاتھ جابر کی داڑھی پہ رکھا اور رکھ کے کہنے لگے جابر اگر تو کہے تو میں ایک امانت تیرے حوالے کرنا چاہوں گا. جابر کی آنکھیں بند تھی، آنکھوں میں خوشی کے
आंसू थे। रिसालत इमाम ने फरमाया, जाबर एक वक्त आएगा तो इसी मिंबर पे मेरे ही बेटे को देखेगा, इस मुकम इसमें जिसका नाम मेरे नाम जैसा होगा, जिसके शमाइल मेरे शमाइल जैसे होंगे, जो हुस्न में मेरे जैसा होगा, जो खुल्क में मेरे जैसा होगा, जो तीनत में मेरे जैसा होगा, जो जहनीयत में मेरे जैसा होगा, जो लहजे में मेरे जैसा होगा। जाबर जब तू ऐसे किसी शख्स को देखे तो जाबर तू उसे कहना कि मुस्तफा तुम्हें सलाम कहते थे, मोहम्मद तुम्हें सलाम कहते थे। जाबर बिन अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं रिसालत इमाम ने ये कह दिया। उसके बाद दौर आ गया अमीर अल मोमिनीन का, लेकिन जाबर कहते हैं कि मेरी नजरें बेताब उसी वक्त के मोहम्मद को ढूंढती रही। दौर हसन का आ गया, मेरी निगाहें उसी वक्त के मोहम्मद पे मरकूज रही। दौर आ गया हुसैन इब्ने अली का, मेरी निगाहें फिर मोहम्मद को ढूंढती रही। दौर ज़ैनुल आबिदीन आ गया, मैंने मौला सज्जाद के पीछे नमाजें पढ़ी, लेकिन आंखें फिर उसी वक्त के मोहम्मद को ढूंढती रही। जाबर ज़ईफ हो चुके थे, अबरू झुक चुके थे, कमर में खम आ गया था। जाबर कहते हैं कि एक दिन खमीदा कमर के साथ मैं असा के सहारे थे, मस्जिद में पहुंचा। जो ही मस्जिद में पहुंचा तो मुझे वही शबाब याद आ गया कि मैंने जो ही मस्जिद के अंदर देखा, जैसे मेरी जवानी की आलम में मिंबर पे मुस्तफा बैठे थे, ऐसे ही मिंबर पे मोहम्मद का बेटा बाकर बैठा था। मैंने जो ही सरकारे बाकर को वैसे ही बैठे देखा। जाबर कहते हैं कि मुझे अपनी ज़ईफी का दर्द भूल गया, मैं जवानी के अंदाज को दोबारा समझना महसूस किया। जाबर कहते हैं मैं चलता चलता उसी जगह पे जाके बैठा जहां शबाब में मुस्तफा के सामने बैठा था। जाबर कहते हैं मैं सहाबा के सामने बैठ के उसी बेताब नजरों से मिंबर की जानब सरकार बाकर को देख रहा था। जनाब बाकर को देख के मैं सोच रहा था कि इन्हें मैं मुस्तफा का सलाम कैसे पहुंचाऊं, या इतनी देर के बाद जैसे बहुत अरसा पहले मुझे मुस्तफा ने कहा था कुम या जाबिर, मुझे वैसे ही सरकार बाकर ने कहा कुम या जाबिर, जाबिर उठ के खड़ा हो जा। जाबर कहता है कि मैं सरकार बाकर के करीब गया, सरकार बाकर ने मेरा सर उसी जानू पे रखा जहां रिसालत इमाम ने सर को रखा था। जाबर कहता मुझे इमामत की इज्जत की कसम है, मैंने वही खुशबू दोबारा महसूस की जो मुझे नबुव्वत के जानू में नजर आई थी, जो मैंने नबुव्वत के जानू में महसूस की थी। जाबर कहता मैं भी उसी खुशबू को सूंघ रहा था कि वो नबी था, ये इमाम है, वो ज़हरा का बाबा था, ये सैयदा का बेटा है, लेकिन खुशबू एक जैसी है। ये जाबर कहता है कि यकलख्त मेरी दाढ़ी पे वही हाथ आया और हाथ फेरने के बाद सरकार बाकर की आवाज आई, खुशबू ही सूंघेंगे, क्या मुझे नाना का सलाम नहीं देंगे? क्या सिर्फ क्या सिर्फ खुशबू सूंघेंगे, क्या मुझे नाना का सलाम नहीं देंगे? और अगला जुमला जो मैं हदिया करने लगा हूं आपकी बारगाह में, मुझे इज्जत मुस्तफा की कसम सरकार बाकर के लिए रसूल ने सिर्फ सलाम नहीं दिया था। हदीस आदि पढ़ी जाती है, मैं अहले सुन्नत की मोतबर सनद के साथ हदीस आज मुकम्मल पढ़ने लगा हूं और आपकी बारगाह में हदिया करने लगा हूं। सरकार मुस्तफा ने सिर्फ ये नहीं कहा था जाबर मेरे बेटे को मेरा सलाम कहना, फरमाया मेरे बेटे को मेरा सलाम कहने के बाद कहना मुस्तफा तुमसे मिलने का मुश्ताक है। कि नबी तुमसे मिलने का इश्तियाक रखते हैं। इश्तियाक से मुराद है नबी तुमसे मिलने के लिए मुश्ताक हैं, जुस्तजू में हैं, इश्तियाक रखते हैं। तो फिर आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। इससे बेहतर जुमला मैं पूरी रात भी पढ़ूं तो सरकार बाकर उलूम की बारगाह में हदिया नहीं हो सकता कि जो मुस्तफा कह रहा है कि मैं बाकर से मिलने का मुश्ताक हूं, उसी मुस्तफा को शब मेराज अल्लाह कह रहा था अर्श पे आ मैं तुझसे मिलने का मुश्ताक हूं, तू अर्श पे आ मैं तुझे मिलना चाहता हूं। जिसे अल्लाह मिलना चाहता है वो सरकार बाकर से मिलना चाहता है। फिर मुझे जुमला कहने की इजाजत देना, या तो मुस्तफा की मेराज अर्श पे है या मुस्तफा की मेराज बाकर के चेहरे में है।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और एक एतराज मेरे मोहतरम सामीन जो किया जाता है वो ये किया जाता है कि इमामत मौला इमाम हुसैन की नस्ल में है, इमाम हसन की नस्ल में क्यों नहीं? ये एतराज अक्सर नासबियों की जानिब से होता है कि आप जो अकीदा इमामत के कायल हैं, आप ये बताएं कि इमाम हसन तो मौला अली के बड़े बेटे हैं, तो फिर इमामत मौला हसन की नस्ल में क्यों नहीं गई, इमाम हुसैन की नस्ल में क्यों आई? उसका जवाब ये मेरा इमाम, ये मेरे वो मौला हैं कि जिनमें आके हसन और हुसैन मुश्तरक हो गए। कैसे? इनके बाबा हैं अली ज़ैनुल आबिदीन जो हुसैन के बेटे हैं, इनकी वालिदा है फातिमा बिनते हसन जो मौला हसन की बेटी है। यानी कि ननिहाल की तरफ से, माँ की तरफ से हसनी है, बाप की तरफ से हुसैनी है। सुभान अल्लाह। जहां हसन और हुसैन मुश्तरक हो जाएं उसे सरकार बाकिर कहते हैं। क्या बात है, क्या बात। इमाम होना भी ऐसा चाहिए जिसकी माँ का नाम भी लो तो शर्मिंदगी ना हो। क्या बात। कितनी बदबख्ती है लोगों की कि वो अपने इमाम के बाप का नाम नहीं ले सकते। हम अपने इमामों की माओं का किरदार भी पढ़ सकते हैं। क्या बात, बहुत खूब। ये अगर बात यहाँ पे आ गई है तो मैं बात यहाँ मुकम्मल कर देता हूँ। मेरे मौला की वालिदा जनाबे शहजादी मुखद्दरा इस्मत फातिमा बिनते हसन मौला हसन की बेटी हैं। नाम सैयदा के नाम से फातिमा है और ये शहजादी की करामत पढ़ने लगा हूँ। साहब बिहार अल्लामा मजलसी ने बिहार में सरकार बाकर के हालात जिंदगी में जनाब फातिमा बिनते हसन के इस वाक़े को मुफस्सल अंदाज में लिखा है। मैं वो वाक़या आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। कितनी साहिब करामत थी, कैसी साहिब इख्तियार थी। लोग पूछते हैं कि इमामत के यहाँ इख्तियार होता है, ओहदे में, इनके ओहदे में इख्तियार नहीं होता। इनके हर फर्द के पास इख्तियार है, इनकी हर मस्तूर के पास इख्तियार है। सरकार अल्लामा मजलसी ने बिहार में लिखा है सरकार बाकर के हालात जिंदगी में कि शहजादी फातिमा बिनते हसन अपने हुजरे से निकल के सेहन में आ रही थी। बीबी दीवार के करीब बैठने लगी या दीवार में शक आया और दीवार गिरने लगी। गिरती हुई दीवार को देख के जनाब बाकर की वालिदा जनाब फातिमा बिनते हसन ने दीवार की तरफ देख के कहा, रुक जा, अभी अल्लाह का इरादा नहीं है। नहीं, मैं शायद जुमला समझा नहीं सका। बीबी ने ये नहीं कहा रुक जा, खुद कह रही है रुक जा, अभी अल्लाह का इरादा नहीं है। तो अब मैं पूछने का हक रखता हूं, वही होती है नबी पे। नबी बता सकता है कि अल्लाह का इरादा है या नहीं है। क्या कहना। इमाम बता सकता है कि अल्लाह का इरादा है कि नहीं है। इमाम की माँ कह रही है रुक जा, अभी अल्लाह का इरादा नहीं है। तो फिर दो ही बातें हैं, दोनों रस्तों में से किसी एक रास्ते में चलना पड़ेगा। या इनकी माएं अल्लाह के इरादे जानती हैं या इनके लबों से निकले हुए लफ्ज अल्लाह का इरादा बन जाते हैं। और क्या कहने इस घर की माओं के। जितना खूबसूरत आपने इस जुमले का इस्तकबाल किया है उससे बेहतर जुमला मैं दोबारा आपकी बारगाह में हदिया करने चाहूंगा कि क्या इख्तियार है इस पाक घर की पाक माओं के कि एक दीवार को इशारा कर दे दिया है कि रुक जा, अभी अल्लाह का इरादा नहीं है। और एक काबे की दीवार पे हाथ रखे कहती फट जा, मेरा इरादा है कि आ जा। अगर मुझे कोई बंदा कहे कि एक सतर पढ़ 2 सेकंड में हमें सुना के सरकार बाकर कौन है, तो फिर मुझे 1 सेकंड में सरकार बाकर सुनाने के लिए यही जुमला कहना काफी होगा कि जिसके शागिर्द का नाम जाफर सादक है। जिसकी गोद में पला हुआ कायनात की हर इल्म का बानी है।
उस उस्ताद का नाम बाकिरुल अलूम। सुभान अल्लाह। सरकारे रात गुजर जाए, ऐसे ऐसे जाविये खुल के आंखों के सामने आ रहे हैं कि सरकारे बाकर अलैहिस्सलाम और सरकारे सादिक अलैहिस्सलाम का बचपन, दोनों बाप और बेटा एक रास्ते से गुजरे। रास्ते में एक देर था जो ईसाइयों का होता है, उसमें एक ईसाइयों का राहिब है जो पादरी है, जो 100 साल के बाद, वो एक साल में एक बार निकलता है और 100 साल से ज्यादा उसकी उम्र है, और साल में एक बार दैर से बाहर आता है। जब वो दैर से बाहर आता है तो उसके दैर के बाहर पादरियों का हजूम होता है, ईसाइयों का हजूम होता है, जो उससे सवालात पूछते हैं। वो दैर की खिड़की खोलता है, खिड़की खोलने के बाद एक दफा उनको साल में जियारत करवाता है, वो अपने अपने सवाल बताते हैं, वो सवालों के जवाब देता है और खिड़की बंद कर देता है, और फिर पूरा साल किसी को नजर नहीं आता। दूर दूर के रहने वाले ईसाई उस दैर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं उसकी जियारत करने के लिए। मेरे 2 बादशाह उसी जगह से गुजर रहे थे कि दैर की खिड़की खुली, खिड़की का खुलना था, उसने यूं खिड़की खोली, बाहर ताहद निगाह ईसाइयों का हजूम। अब आपने जुमले को जाया नहीं करना, आप जुमले की कदर करेंगे तो बहुत बेहतरीन हदिया नतीजा आने लगा। इस वहां पादरी ने, राहिब ने दैर की खिड़की को खोला, ताहद निगाह ईसाइयों का मजमा देखा। मजमे को देखते उसने अपनी आंखों को ऐसे देखा जैसे किसी को ढूंढ रहा है, जैसे जो ही नजरें सरकारे बाकर के चेहरे में पड़ी, ईसाई राहब किताबें कहती हैं कि खिड़की खोल के बाकर को देख के कहने लगा, क्या तू मोहम्मद है? तू मुझे बता कि तेरा किस उम्मत से ताल्लुक है? सरकारे बाकर ने फरमाया कि तू जो लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए आया है, मैं तुझसे कुछ पूछूं? इतना कहना था, मैं तुझसे कुछ पूछूं? या राहब खिड़की में से हाथ बांध के कहने लगा, आ ही गए हो तो फिर इजाजत दो मैं आपसे कुछ पूछूं। उसने कहा मैं 4 सवाल करना चाहता हूं। सरकारी बाकर की आवाज 4 सवाल कर। उसने कहा मेरा पहला सवाल ये है, वो कौन सा वक्त है जिसका शुमार न दिन में है न रात में? मेरे मौला इमाम बाकर ने एक लम्हा देर किए बगैर कहा, वो वक्त है तलूहे फजर से पहले। वो वक्त होता है जिसका शुमार न रात में न दिन में है। वो वक्त साआत जन्नत में से है, जिस वक्त में बेकरार को करार आ जाता है, बीमार को शिफा मिल जाती है, रात का सोया हुआ जागा हुआ नींद के आलम में आ जाता है और इंसानियत को सुकून आ जाता है। उसने कहा मेरा दूसरा सवाल ये है कि तुम्हारा नाना नबी ये कहता था, या तुम्हारी उम्मत में है, या तुम्हारा रसूल, या तुम्हारे मजहब इस्लाम में ये है कि जन्नत में जन्नती खाएंगे अल्लाह की तमाम नेमतों को, लेकिन निजासत नहीं होगी। इसकी कोई मिसाल दुनिया में है? इमाम ने फरमाया बेशक है। उसने कहा कौन सी? इमाम ने फरमाया माँ के पेट में वो बच्चा जो माँ के पेट में खुराक तो लेता है लेकिन निजासत नहीं होती। उसने कहा तीसरा सवाल। इमाम ने कहा बता तेरा तीसरा सवाल क्या है? उसने कहा मैं तीसरा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि अल्लाह की कायनात में वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा सख्त है? फरमाया वो अल्लाह का अम्र है। ये कहने के बाद ईसाई राहब ने इमाम की तरफ देखा और इमाम की तरफ मतवज्जे होकर कहने लगा क्या तू मोहम्मद है? फरमाया हाँ मैं मोहम्मद हूँ। कहने लगा क्या तू एलिया है? फरमाया हाँ मैं ही एलिया हूँ। इतना कहना था या ईसाई राहब ने अपनी खिड़की में अपने दरवाजे को खोला, दरवाजे को खोल के सरकारे बाकर के करीब आया, सरकारे बाकर के कदमों पे अपना सर रख के कहने लगा मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। सरकारे बाकर ने उसका हाथ अपने हाथ में रखा, फरमाया पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अलीय्यन वलीउल्लाह व औलादिहिल मुअस्सिमीन हुज्जतुल्लाह। इसने कलमे को पढ़ना था। कलमा पढ़ने के बाद सरकारे बाकर उसकी तरफ देख के कहने लगे तूने एक लम्हे में मज़हब इस्लाम को कबूल कर लिया, अल्लाह की वहदनीयत को मान लिया, रसूल की रिसालत को मान लिया, हमारी विलायत और इमामत को मान लिया, बता इतनी जल्दी मुसलमान कैसे हो गया? उसने कहा पूरे 100 साल हो गए हैं मुझे अंजील पढ़ते हुए। जो नुस्खा मेरे पास लिखा हुआ है उसमें यह लिखा हुआ एक वक्त आएगा तेरे दैर के दरवाजे पे एक वो आएगा जो मोहम्मद भी होगा, एलिया भी होगा।
یہ میرے وہ امام جن کی ظاہری حیات طیبہ 57 ایئرز میرے مولا نے ظاہری دور گزارا، اور مشکل ترین دور، خدا لعنت کرے ملعونین پر، عبد الملک کے بیٹوں کی حکومت تھی۔ بے شمار بے شمار، ولید بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک، عبد الملک کے بیٹوں کی۔ اور عبد الملک کون؟ مروان کا بیٹا۔ مروان کون؟ حکم کا بیٹا۔ کن خبیثوں کی حکومت تھی کہ جس کو باپ اور بیٹے کو رسول نے اپنی زندگی میں مدینے سے نکالا تھا۔ اسلام کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہو گیا، ایک ایسی سازش ہو گئی، جن کو نکالا گیا تھا وہی اسلام کے حکمران بن گئے۔ امیہ کے یہ حکمران، اور میرے اس امام کا دور اس حوالے سے تھوڑا شاندار دور ہے کہ اموی آخری بادشاہ تھے، اور بادشاہت اور حکومت عباسیوں میں منتقل ہو رہی تھی۔ اموی اور عباسی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خانہ جنگی میں مبتلا تھے، اور میرے امام علم کی دنیا خلق کر رہے تھے۔ بے شک، یہ جو جناب امام جعفر صادق کا علمی انقلاب آیا ہے، اس کے پیچھے جو تیاری ہے وہ تیاری سرکار باقر کی ہے۔ بے شک، سرکار باقر العلوم نے ایسی تیاری کی کہ جناب جعفر صادق نے وہ جو زمین زرخیز ہوئی تھی اس میں علم کے بیج بو دیے۔ اور عزاداری، یہ جو ہم کیونکہ ایام عزا بھی قریب ہیں، میں اس امام کے حوالے سے عزاداری کا ایک لفظ آپ کو سنانے لگا، اس لفظ کو ساری زندگی یاد رکھیے۔ سرکار امام باقر علیہ السلام نے اپنی جو وصیتیں کی ہیں نا، جو آخری شب اپنی وصیتیں کی ہیں، ان وصیتوں میں ایک وصیت پڑھنے لگا۔ مولا نے اپنے بیٹے جعفر صادق سے کہا، بیٹا عزاداری کو کبھی نہ بھولنا، اور حج کے دنوں میں منع میں عزاداری کا اہتمام کرنا۔ اور امام نے کہا کہ میں 8000 دینار اپنی جائیداد سے وقف کر رہا ہوں جو میرے جد حسین کی عزاداری پہ خرچ کرنا۔ یہ جو ہم آج عزاداری پہ خرچ کرتے ہیں، یہ سرکار باقر کی سنت۔ یہ جو ہماری حسرت ہوتی ہے کہ عزاداری کا اہتمام ہو، یہ جناب سرکار باقر علوم کی حسرت۔ بہت پیار تھا اپنے جد حسین کی عزاداری کے ساتھ۔ کیوں نہ ہوتا یہ واقعہ کربلا کے چشمدید گواہ۔ 4 سالہ حیات طیبہ تھی جب کربلا میں گئے۔ مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجیے گا، اور بے ساختہ یقیناً آپ کی ہائے نکلے گی۔ جن رسیوں میں حسین کی بیٹی قید تھی، انہی رسیوں میں زین العابدین کا بیٹا بھی قید تھی۔ پھپھی اور بھتیجا اکٹھے قید رہے۔ جناب باقر نے کربلا کا پورا واقعہ دیکھا، شام کا منظر دیکھا، زندان کی تنہائی دیکھی، دربار کی پیشیاں دیکھی، بابا کی غربت دیکھی۔ اگر آپ میں سے کوئی سید بیٹھا ہے تو مجھے معاف کیجئے گا، سرکار باقر کے مصائب پہ رونے کے لیے سب سے بڑا جملہ یہ ہے، جو رسی سید الساجدین کی گردن میں تھی وہی رسی سرکار باقر العلوم کی گردن میں تھی۔ اگر آپ کی ہائے نہیں نکلی تو یقیناً آپ جملہ سمجھ نہیں سکے۔ دونوں کا قد ایک جیسا نہیں تھا، صرف جناب باقر کے گلے کی رسی کی وجہ سے پورے رستے میں میرے مولا سید الساجدین کمر جھکا کے چلتے رہے۔ بچپن میں ہی ضعیف ہو گئے سرکار باقر۔ شام کی قیدوں نے جناب باقر کو ختم کر دیا۔
मदीना पहुंचे, शादी हुई, अल्लाह ने औलाद दी, बेटा जाफर सादक हुआ। खुदा लानत करे, हशाम का दौर था, मेरे मौला ने खुतबा हज में हुकूमत के खिलाफ एक बहुत वाज़े तकरीर की। खबर हशाम को पहुंची कि सरकार बाकर ने हज के मजमा में हुकूमत के खिलाफ तनकीद और तकरीर की है। इसने सिपाहियों को भेजा कि बाप और बेटे को कैद करके ले आओ। सिपाही मदीने पहुंचे, सरकार बाकर ज़ईफ हो चुके थे। ज़ईफ बाबे को जनाब जाफर सादक का बचपन, दोनों को कैद कर लिया गया। जब कैद करके शाम की तरफ लेके जा रहे थे, जो ही शाम का सदर दरवाजा आया, ज़ईफ बाकर की चीख निकली। मौला जाफर सादक की आवाज आई, बाबा रो क्यों रहे हैं? फरमाया जाफर, जिस दरवाजे से हम चुप करके गुजर आए हैं, यहाँ मेरी फूफी ने 15 अज़ानें सुनी। मेरा सलाम हुसैन की बहन पे, जो इसी बाजार के इसी मोड़ पे खड़ी रही। जनाब बाकर जब जनाब जाफर सादक के साथ पहली बार जनाब जाफर सादक करबला में गए हैं, आज भी आप करबला में जाएं, मकाम इमाम जाफर सादक है, जो मकाम इमाम ज़मा के पीछे एक बाग है जो मंसूब है इमाम जाफर सादक के साथ। हर दौर की हुज्जत करबला में आई, हर दौर का इमाम करबला में आया। ये वही मेरे बाकर मौला है जिन्होंने करबला खरीद होती भी देखी, फिर करबला लहू से शराब होती भी देखी। यही जनाब बाकर ज़ईफी में जब अपने बेटे जाफर सादक के साथ आए हैं, किताबें कहती हैं कि जनाब बाकर की आंखों की बिनाई जा चुकी थी, आंखों से नजर नहीं आता था। फरमाया जाफर सादक अब कहाँ आए हैं? फरमाया बाबा हम करबला में आए हैं तेरे जद हुसैन की ज़ियारत के लिए। सादात मुझे जुमला माफ कीजिएगा, जनाब बाकर रो के कहते हैं, जाफर एक बार मुझे अब्बास की कब्र पे ले जाइए। जनाब जाफर सादक जनाब बाकर मौला को हाथ में लेके असा के सहारे से जनाब बाकर चलते चलते मौला अब्बास की कब्र पे आए। मौला अब्बास की तुरबत पे आके जनाब बाकर ने अपना रुखसार रखा, रुखसार रखेगा, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास, ऐ मेरे मौला अब्बास आप पे मेरा सलाम हो। कब्र से आवाज आई, अलैका सलाम या इब्न रसूलुल्लाह, अलैका सलाम या हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़। जनाब बाकर की आवाज आई है, मौला अब्बास एक बार कब्र से निकलिए। जो करबला में बच्चा था वो ज़ईफ हो गया, लेकिन मुझे अभी तक आपके बाजुओं का कटना नहीं भूला। अब जो सदात बैठे वो मुझे जुमला माफ कीजिएगा, किताबें कहती हैं कि मौला बाकर को जो जहर दी गई वो जहर कैसे दी गई? दूध में, अंगूर में नहीं। शायद आपकी पहली बार आपकी समात के साथ ये दर्द जा रहा हो तो यकीनन हाय कहिएगा, जनाब बाकर को किसी मशरूब में जहर मिला के नहीं दी। इस मलाओं ने घोड़े की जीन पे जहर रखी और इमाम बाकर को उस घोड़े पे जबरदस्ती सवार करवा दिया। जहर जिस्म के अंदर ऐसे गई कि मौला जाफर सादक कहते हैं कि मेरे बाप की हथेलियों से लहू आ रहा था, हथेलियों से जनाब बाकर के खून आया। मैं आखिरी जुमला मातम के लिए कहने लगा हूं, जिसकी आंख से आंसू निकला उसे एक बार हाय की दावत देने लगा हूं। जैसे ही जनाब बाकर की आंखों से जनाब मौला बाकर की हथेलियों से लहू आया, इमाम जाफर सादक ने बाबा की ये हालत देखी। इमाम जाफर सादक ने दौड़ के आके अपना सर बाबा के सीने पे रखा। सर का सीने पे आना था या बेसाख्ता हाय हुसैन की आवाज आई। जनाब जाफर सादक की आवाज, बाबा जहर की शिद्दत ज्यादा है। फरमाया भूल गई मुझे जहर। जाफर मुझे एक लम्हा याद आ गया। फरमाया बाबा कौन सा लम्हा? फरमाया तू बेटा है, तूने मेरे सीने पे सर रखा, मुझे सुकून हो गया। हाय करबला में जब मेरे जद हुसैन की बेटी लाशों के दरमियान ढूंढ के कातिल से कह रही थी, एक बार मुझे बाबा के सीने पे सर रखने, कातिल ने बजाय सर रखने के ऐसा जुल्म किया था कि मेरी भूमि के चेहरे पे नीले निशान पड़ गए। अल्लाह